हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हियर, class 10 CBSE NCERT here. You know that is the most important question paper social science here, but next question arrive here that's important. The question here, a farmer has borrowed money from a money lender at a high rate of interest. As he could not be pay the interest, he was forced to the borrow from to another landlord to be settled the amount of the interest probable to be a money lender. State the consequence he may be faced in this situation. You know that that's the most important question for the exam view here. The farmer has borrowed money from a money lender at a high rate of interest. That's true. The answer here, the farmer has fallen into the debate trap. He is a situation where he will not be able to repay to the debate as an increase because the informal sector was a source of credit obtained by the farmer, where here the rate of interest is high, no proper documentation is sought, no set of rules and regulation will be followed. The lenders were often punished and will be ill-treated. The prime motives of the informal sources of this kind of credit is to make profit. That's important here. The informal sector was source of credit obtained by the farmer were important. There is interest is a high rate, no proper documentations, no set of rule and regulation, and lender where is a punishment will be ill treated here, and prime motive of informal source of kind of credit to make profit. He may be face the following consequence here. That's important. He may face the following consequence here. The farmer may face a ongoing harassment and physical harm from the man sent by the money lender. He will be not to able make a regular interest payment or repay the fully amount borrowed, and this could be lead to significant stress and anxiety as well as potential physical injuries. That's important consequence here. And borrowings from to another landlord to repay their original loan maybe create a cycle of debt for the farmer, particularly if their interest rate on the second loan are also high. The farmer might be experience personal consequence such as a mental stress, anxiety and depression due to the constant pressure of repayment and harassment from the lender. That is the most important consequence of 4 point here. That is important for the exam view here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए जो CBSE NCERT के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ वाली है। और क्वेश्चन है कि एक किसान ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था। देखिए, ये तो पुराने समय में एक चलता हुआ प्रथा है, जो एक किसान ने साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सका। उसे साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि का निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताइए कि इस स्थिति में उसे किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि एक किसान ने उच्च दर पर जो है किसी साहूकार से जो है उधार लिया उसने, और उसमें उसको नुकसान हो गया किसान का, और ऋण की जो राशि थी, उधार की जो राशि थी, ब्याज की जो राशि थी, उस साहूकार ने अधिक से अधिक बढ़ा दिया। अब इस सूरत में क्या हुआ
उसको दूसरे ज़मींदार से जो है उधार लेना पड़ा। अब देखिए ये किसान जो है दोनों तरफ से फंस गया। पहले साहूकार से लिया वो तो अधिक ऋण दिया ही दिया, अब दूसरे साहूकार से भी ऋण लिया उसको देने के लिए, तो कहते हैं उस साहूकार के चंगुल में भी फंस गया और इस साहूकार के चंगुल में भी फंस गया। अब इस कंडीशन में उस किसान की क्या दुर्दशा होगी, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। लोन कहते हैं ना तो पुराने समय में सही था और न ही आज के समय में, क्योंकि लोन की प्रथा जो चलती आ रही है कहते हैं उनका सूरत वही है, सिर्फ देने वाले बदल गए हैं। पहले लोन जो होता था बड़े बड़े साहूकार दिया करते थे और उच्च दर ब्याज पे। आज जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है लोन की प्रथा चला रखी हैं और ये भी लोगों को जो है अपने चंगुल में फंसाने के लिए हर समय कॉल करते रहते हैं। और जो व्यक्ति इनके कॉल में फंस गए, जो इनसे एक बार लोन ले लिए, फिर तो उनका सत्ते में जैते कर देती हैं। क्योंकि आज तो चलिए किसानी क्षेत्र तो ख़त्म होती चली जा रही है, आज आम व्यक्ति लोन लेने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, कभी टीवी के लिए, कभी फ्रिज के लिए, कभी कूलर के लिए, तो कभी कुछ के लिए। लेकिन एक बार अगर आप लोन ले लेते हो और समय पे नहीं चुका पाते हो तो ये फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, वो सामान को भी आपसे छीन के ले जाएगी जिसका आपने आधे पेमेंट भी दी थी प्लस किस्त भी चुकाई थी, और साथ में आपको कुछ सालों के बाद परेशान ये करेंगे कि आपके सामान मैंने बेचा लेकिन मुझे उसमें नुकसान भोगना पड़ा, जिसके कारण आपको जो है पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे, तभी आपको एनओसी मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट के नाम से जो है आपको प्रताड़ना करेंगे और बार बार आपको परेशान करेंगे, कॉल करेंगे। तो देखिए बात वही है, पहले के साहूकार हो या आज के फाइनेंस कंपनियां हो, दोनों का काम एक ही है कि आम इंसानों के जो है अच्छे से निचोड़ना होता है। कहते हैं पहले भी प्रथा बदली नहीं है ना आज बदली है। पहले किसान जो है इनसे लोन लेते थे, लेकिन आज लोन की प्रथा तो हर एक आम व्यक्ति कर रहे हैं और फाइनेंस कंपनियां जो है एनओसी के नाम पर आम लोगों को ठग रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। और धमकियां किसी को देते हैं, हम तो ये बात अदालत में लेके जाएंगे क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था। आपको पता ही होगा कि जब इनसे कोई लोन लेने जाओ या कोई फाइनेंस करवाने जाओ तो ये ना अपने पास से निकाल के एक बुकलेट पकड़ा देते हैं, और बुकलेट पे इतने छोटे छोटे अक्षरों में 1000 पन्ने होते हैं, जितना उतना पढ़ना भी एक आम इंसान के लिए संभव नहीं होता। और जब पढ़ने लगो तो कहते सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे कस्टमर बैठे पड़े हैं। अब इस कंडीशन में फंसाने का कैसे धंधा इन्होंने चला दिया है, और यही क्वेश्चन समझाता है। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा कि एक किसान ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था, क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, उसे साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि को निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बताइए कि स्थिति में उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो कहते हैं किसी ऋण जाल में फंस गया, यानी ये जो किसान है ऋण जाल में फंस गया, जो मैं अभी समझा रहा था। पहले साहूकार लोग फंसाते थे, आज फाइनेंस कंपनियां फंसाती हैं। और आप देखिएगा कि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती है। आए दिन आपको ना कॉल आते रहते हैं फाइनेंस कंपनियों से कि या मैसेज आते रहते हैं कि आप इस पर लोन ले लीजिए, उस पर लोन ले लीजिए, और बैंक वाले तो हद से अधिक परेशान करते हैं। एक बार आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा अधिक क्यों ना चला हो गया हो, फाइनेंस कंपनियां और ये बैंक वाले तो आपको जीने तक भी नहीं देंगी, और उन अपने ऋण जाल में आपको फंसाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। यानी ये किसान जो था, जर्नली से देखा जाए तो ये किसान ऋण जाल में फंस गया। वह ऐसी स्थिति में जहां वह अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र किसान द्वारा चुना गया ऋण का स्रोत था जहां ब्याज दर कम उच्च था। तो देखा जाए ये किसान जो है एक ऋण जाल में फंस गया है। अब देखा जाए तो कोई उचित दस्तावेज नहीं मंगाया गया, ये सबसे बड़ा उसकी गलती थी कि कोई उचित दस्तावेज नहीं मांगा गया, किसी भी नियम और विनियम का पालन नहीं किया गया। ऋणदाताओं को अक्सर दंडित किया जाता था और उनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता था। तो जर्नल सी बात है, ये तो सच्चाई है। और इस प्रकार के ऋण को अनौपचारिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है। आज देखिए कोई भी कंपनियां हो, कोई फाइनेंस कंपनियां हो, सबका एक ही कार्य होता है, लाभ कमाना। चाहे आम लोगों को जैसे मर्जी उनको सताना पड़ जाए, चाहे अदालत की धमकी देना पड़ जाए, चाहे कानून का जो है धमकी देना पड़ जाए। आज कानून जो है इन्हीं फाइनेंस कंपनियों के साथ चलती है और साथ रहती है, क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनियों को ये अधिकार दिया गया है एनओसी के रिगार्डिंग,
तो ये भी तो होना चाहिए ना कि सामान अगर आप बीच में उठा कर ले जाते हो, किस्त नहीं चुकाया जाता है, उठा के ले जाते हो, तो उसके बारे में बताओ, उसी समय बताओ, या 10 दिन में बताओ, 2 दिन में बताओ। जब आप सामान लेके चले गए, किस्त भी आपने ले लिया कुछ हद तक और डाउन पेमेंट भी भरवाया, फिर दोबारा आपको एनओसी के नाम पर धमकाने की क्या ज़रूरत है? क्या भारत सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती? क्या हमेशा किसानों को और आम इंसानों को ये बड़े बड़े साहूकारों और फाइनेंस कंपनियों से हमेशा प्रताड़ना मिलती रहेगी? ये बहुत बड़ा विडंबना है दोस्तों। आज देखा जाए तो आज सरकार की शक्ति को दिखाकर, कानून की धमकी के दिखाकर जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है आम लोगों को लूट रही है। देखा जाए तो उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक बार जब ऋण जाल में ये किसान फंस गया, उसके बाद उसको कुछ परिणामों का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला परिणाम तो यही होगा, किसान को साहूकार द्वारा भेजे गए लोगों से निरंतर उत्पीड़न होना पड़ेगा और शारीरिक क्षति को सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक बार अगर आप लोन ले लेते हो, लोन पूरी तरह से नहीं चुका पाते हो, तो कंपनियां आपको मैसेज करेगी, कॉल करेगी और कहेगी कि आपको मैं अदालत में ले जाऊंगा, अदालत में आपको 2-2, 3-3 लाख रुपये भरने पड़ेंगे, जबकि आपकी औकात 10,000 का भी नहीं होगा। तो पहले किसान जो है साहूकार द्वारा भेजे गए लोगों से उत्पीड़न होंगे और आज फाइनेंस कंपनियां भी अपने लोग को भेजते हैं बार बार धमकी देने के लिए कि भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। और शारीरिक क्षति भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी कोई आपके सामने कुछ बोलेगा तो जनरल सी बात है, कोई गलत बात बोलेगा तो गुस्सा तो चढ़ता ही है। तो इन कारणों से जो है शारीरिक क्षति भी हो सकती है। वो नियमित ब्याज भुगतान करने या उधार ली गई पूरी राशि चुकाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार राशि ले ली जाती है तो उसको चुकाना संभव नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं ना, एक बार अगर किस्त टूट जाती है, एक बार अगर ब्याज आप धनराशि नहीं देते हो तो उसका सीक्वेंस ही बिगड़ जाता है। और सच्चाई है, कहते हैं ब्याज लेना बहुत ही दुष्कर्म कार्य रहती है, क्योंकि एक बार अगर इसका रिदम टूट गया ना तो फिर उसको जुड़ना संभव नहीं रहता है। इसे महत्वपूर्ण तनाव, चिंता के साथ साथ संभावित शारीरिक चोट भी लग सकती है। आपने देखा होगा कि जो किसान ने ऋण लिया था, आज आधुनिक युग में की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कई लोगों ने तो फांसी तक भी लगा ली, क्योंकि उनको पता था कि ऋण अगर ना चुका पाया तो ये जो है हमें बहुत प्रताड़ना देंगे, शारीरिक उत्पीड़न करेंगे और हमें बहुत तरह के जो है कानूनी धमकी देंगे। इसलिए देखा जाए तो कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या कर लिया और ये देश की सबसे बड़ा विडंबना है। लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुली कि आखिर उन किसानों ने क्यों फांसी लगाया। क्या ऋण लिया था इसके लिए? क्या कंपनी उनको प्रताड़ना दे रही है इसके लिए? कहते हैं सरकार की नींद इसलिए नहीं खुलती है क्योंकि इन कंपनियों से सरकार को बहुत ही मुनाफा होता है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। देखा जाए तो मूल ऋण चुकाने के लिए किसी अन्य जमींदार से उधार लेने से किसान के लिए ऋण का एक चक्र बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो उसने दूसरे जमींदार से जो ऋण लिया है उससे एक नया चक्र बन सकता है। खासकर यदि दूसरे ऋण पर ब्याज दरें भी अधिक हो तो वो और भी जो है चंगुलों में फंसते चला जाएगा। पहले एक साहूकार के चंगुल में फंसा है, अब दूसरे जो है साहूकार के चंगुल में फंसेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखा जाए, चलिए उस समय राजा महाराजा का समय था तो हम कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आज हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और यहाँ जनता की राज है, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार इन पर अगर पहलू करे, अच्छे विचारधारा सामने लाएं, तो इन किसानों को जो है आत्महत्या से बचाया जा सकता है और कई आम इंसानों को जो है इस तरह के उत्पीड़न से सुरक्षित किया जा सकता है। देखा जाए तो पुण्य भुगतान के लगातार दबाव और ऋणदाताओं के उत्पीड़न के कारण किसान को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी व्यक्तिगत परिणामों का अनुभव हो सकता है, जो जर्नली सी बात है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी व्यक्तिगत परिणामों का अनुभव हो सकता है और किसान आत्महत्या भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे एक जीवन का भी जो है खत्मा हो सकती है। तो देखा जाए तो एक बार अगर आप ऋण जाल में फंस गए तो सदैव के लिए फंस जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ऋण न लो, कहते हैं अपनी इच्छाओं को इतना ही सीमित रखो जितने कि आप रख सकती हो। आज ऋण लेने का मतलब वही होता है, जैसे किसान के ऋण के चक्र में फंस गया है, उसी प्रकार आज के समय में आप फाइनेंस कंपनियों के कुछ चक्र में फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से टॉपिक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और समझ के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और आम जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। द क्वेश्चन हियर, सेल्फ हेल्प ग्रुप
SHG eliminate poverty and empowers women. Substantiate with the suitable answer. You know that there is a most important question for the exam view here. The question has a SST here. The self-help group SHG eliminate poverty and empowerment of women. Self-help group help to the poor to become a self-reliant in the term of savings and generating income. You know that become a self-reliant in the term of saving and generating income. They avail their facilities of loan from formal source like banks at a low rate of interest. That's important. They able to the facilities of loan from formal sources like a bank at the low rate of interest. Second, they do not be demand collateral and so it is easy to assess by the poor. They do not demand collateral and so it is easy to be assessed by the poor. They do not self-help group are exclusively meant for the rural women to make them economically independent through the self-employment opportunities. You know that's important. Self-help groups are exclusively meant for the rural women to make them economically independent through the self-employment opportunities and help to improve other development factors such as literacy level, improve health care, and better family planning. That's important. They help to improve other development factors such as literacy level, improve health care, and better family planning here. The next here, economical empowerment. Economical empowerment that's important. SHGS is a provide a woman with a platform to the save and assess credit at the affordable rates, which enable them to start and spend a small business and thus the improving the standard of living. Economical empowerment for women that's important, and skill development is also important. SHGS is the Indian have also been a successful in the providing skill development and training opportunities to the women. That's important, training opportunity to the women, and through the training programs women are equipped with there is a necessary skill to start and run successfully business. That's important skill development here. The next here, social empowerment. Social empowerment, that's important point here. By providing a platform for a women to come together, share their experience and support each other. SHGs have empower women to take charge of their lives and become active participant in their opportunity. You know that is an important point here. Skill development, social empowerment. That's the most important for the exam view here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस का है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत। कहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई हद तक जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक बच्चों के लिए रहेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप है, काफ़ी स्वयं सहायता समूह गरीबी को ख़त्म करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। इसको आप उपयुक्त उत्तर देकर सब पुष्टि करना है कि ये बात सही है। क्या SHG का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है गरीबी ख़त्म करना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, तो इसी पे आपको एनालाइज करना है। और यहाँ ग्रुप है स्वयं सहायता समूह यानी SHGS जो काफ़ी महत्व रखता है। स्वयं सहायता समूह गरीबों को बचत और आय सृजन करने के मामले में आत्मनिर्भरता में मदद करता है। देखिए
स्वयं सहायता समूह का एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कार्य बनता है कि वो गरीबों की मदद करता है, पैसे की बचत करने में मदद करता है और आय को सृजन यानी आय को बनाने के लिए, आय कमाने के लिए जो है उसको आत्मनिर्भर करने में मदद करता है। और वह देखा जाए तो कम ब्याज दर पर बैंकों जैसे औपचारिक स्रोतों के ऋण की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। कौन उठाते हैं? गरीब लोग। और गरीब लोग जो है ऋण लेके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। और ये कौन सहायता करवाता है? स्वयं सहायता समूह। वे कम ब्याज दर पर बैंक जैसे औपचारिक स्रोतों से ऋण की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और वो संपार्श्विक की मांग नहीं करती हैं, इसलिए गरीबों द्वारा इस तक पहुंचा आसान है। यानी देखा जाए संपार्श्विक का मतलब होता है कि विशेष डॉक्यूमेंट की ये मांग नहीं करती हैं और इससे जो है गरीब आसानी से इस ऋण तक पहुंच सकता है और इस ऋण को ले सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये कहाँ तक सार्थक है, इसके बारे में त्रिपान स्टडी सेंटर कोई पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि जर्नल सी बात है, कोई भी लोन लेने वाला कंपनी, देने वाला कंपनी हमेशा ही अपना लाभ कमाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेशक ही स्वयं सहायता समूह जो है गरीबी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। अगर ये गरीबी ख़त्म करने का प्रयास कर रही होती तो आज भारत में इतनी गरीबी नहीं होती। और महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, कहते हैं ऋण दे देने से सशक्तिकरण नहीं हो सकता भारत में। महिलाओं को सशक्तिकरण करना है तो हमें समाज को जगाना है, समाज जागेगी तभी जो है महिलाओं को जो है आगे का रास्ता खुलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वयं सहायता समूह जो है काफ़ी मदद कर रही है कि बैंकों से औपचारिक स्रोतों की ऋण सुविधाएं जो है लाभ उठा सकते हैं और कोई भी जो ऋण लेना चाहता है संपार्श्विक डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करती है, इसलिए गरीब द्वारा इस तक पहुंचना आसान हो जाता है। स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें स्वयं रोजगार के अवसर के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके, सहायता करती है। यानी स्वयं सहायक समूह जो होती है ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी सहायता करती है और उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। साक्षरता दर सदर को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर परिवार नियोजन जैसे अन्य विकास का कार्यों को बेहतर बनाने में मदद भी करती है। यानी देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह जो है साक्षरता दर अधिक बढ़ाने में मदद करती है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल में मदद करती है, बेहतर परिवार नियोजन की तरफ अपना कार्य करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो SSG का जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य है गरीबों के लिए। चलिए ये तो था गरीबों के लिए। अब देखते हैं जो है इसमें जो है महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला पॉइंट आता है आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब यही होता है कि SHGS जो है महिलाओं को किफ़ायती दरों पर बचत करने और ऋण प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में सक्षम बनाता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो सके। यानी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि SHG जो है महिलाओं को किफ़ायती दरों पर बचत करने और ऋण प्राप्त करने के लिए एक मंच जो है देता है, जो उन्हें छोटे से छोटे व्यवसाय करने में सक्षमता मिलती है और उसको जो है अधिक सुधार किया जा सकता है। उसके पश्चात देखें कौशल विकास। कहते हैं भारत में SHG महिलाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करने में भी सफल रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सफल व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक कौशल लैस किया जाता है। कि आज देखिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए SHG के अंतर्गत बहुत से जो है प्रशिक्षण कार्य शुरू किए गए हैं, जिसका एक ही मकसद होता है महिलाओं को जो है स्वयं लंबी बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि वो अपना जीवन स्वयं ही चला सके, खुद ही अपना इर्निंग्स जो है कमा सके। तो यहाँ पर देखा जाए तो SHGS ने काफ़ी महत्वपूर्ण पहल किया है महिलाओं के लिए और ये सारे जो है ग्राम क्षेत्रों में रह रहे महिलाओं के लिए जो है ऋण प्रदान भी किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं को एक साथ आने, अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे का सक्षम करने के लिए एक मंच प्रदान करके SNG ने महिलाओं को अपने जीवन के जिम्मेदारियों लेने और अपने समुदाय में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाया है।
देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि महिलाओं के एक साथ आने, अपने अनुभव को साझा करने और एक दूसरे को समर्थन प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इससे सामाजिक सशक्तिकरण होता है और महिलाएं जो है हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले सकती है और समाज में अपनी जिम्मेदारी को निभा सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो SHG का पहल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जो है महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गरीबी के अंतर्गत भी और महिलाओं के विकास हेतु भी SHG ने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्व रखता है और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से जरूर करना, लिख भी लेना, समझना भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन है यह, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ द जनरल and economical development. Examine the statement in the context of India. You know that's important. The manufacturing sector is considered as the backbone of the general and economical development. That's an important question for the exam view here. The manufacturing sector is considered as a backbone. Manufacturing industry not only help in the modernizing agriculture, which form their backbone of our country, our economics. You know that's important. Manufacturing industry not only help to the modernizing culture which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them a job and secondary and tertiary sector. That's important here. Manufacturing industry is a backbone of India. You know that's an important statement here. First of all, here manufacturing industry help in modernizing agriculture. That's an important point here. It's a help in reducing the heavy dependence of people on the agriculture income, providing to the job and secondary and tertiary sector. That's important. It help with the eradication of unemployment and poverty from our country. That's important here. The eradications of unemployment and poverty from our country. It's a help in reducing original disparities by the establishing industry in the tribes and backward area. That's important here. Tribes and backward area, the industry establishment here. The export of manufactured goods expand trade and commerce. That's important. Export of manufactured goods expanding trade and commerce. Its help is a varying of foreign exchange. Its help in varying of foreign exchange. Countries that are transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. That's important. And industrial development is a preconditions for the eradication of unemployment and poverty from our country. That's important also is a point here. It also help in the varying down regional disparities by the establishing industry in our tribes and backward area. And it leads to last point here, export of manufactured goods, expanded trade and commerce are bearing much a need of foreign exchange. That's important here. You know that. And the 10 point is the most important. You choose a 5 point in this is the most important for the exam view here. यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो यहाँ क्वेश्चन पेपर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है। और क्वेश्चन यहाँ पर साफ है और क्लियर है कि विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भारत के संदर्भ में कथन की परीक्षण करें। देखिए विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो होते हैं हमारे भारत देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है। कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र अगर नहीं होंगे तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। ये क्या बात सही है? देखा जाए तो विनिर्माण सेक्टर जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और देखा जाए तो भारत नहीं किसी भी देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।
तो देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र का अपना एक विशेष स्थान है। इसलिए भारत के संदर्भ में ये बात बताई गई है कि भारत के लिए ये रीढ़ की हड्डी हो सकती है। तो यहाँ पर बात कई हद तक सही है। अगर हम आंसरों की तरफ नज़र करें तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी देखा जाए तो विनिर्माण के कारण ही कृषि को आधुनिकीकरण बनने में मदद मिली है, जो भारत के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर कृषि को कोई आगे बढ़ाता है तो वो विनिर्माण उद्योग ही है, और कृषि आगे बढ़ती है तो कृषि तो आपको पता ही है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान मानी जाती है। क्योंकि कृषि नहीं है तो भारत लाचार है, और ये बात शायद बड़े लोगों को समझ नहीं आती है कि जितने हम एग्रीकल्चर में प्रोत्साहन करेंगे उतना देश विकास की उस सीमा तक पहुँचेगा। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है, बल्कि वो लोग को माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करके कृषि आय पर उनकी भारी निर्भरता को भी कम करते हैं। यानी देखा जाए तो विनिर्माण उद्योग जो है कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं और कई क्षेत्रों में नौकरियों का जो है सृजन भी कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो कृषि आय पर जो है निर्भरता जो है बहुत ही कम हुआ है, और ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण ही हुई है। देखिए ये पॉइंट बात इम्पोर्टेंट रखता है। अब हमारे समक्ष कुछ पॉइंट है, 10 पॉइंट है। मैंने इसको छोटा भी करने की कोशिश किया है, बड़ा भी रखने की कोशिश किया है। इन पॉइंटों में से जो आपको सही लगता है, जो आसान लगता है, उसको लिखिए, याद कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट त्रिपान इंस्टीट्यूट सेंटर ने रखा है। तो पहला पॉइंट यही बताता है कि विनिर्माण उद्योग कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। तो ये जनरल सी बात है कि आधुनिक बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। यह कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करने में मदद भी करता है और उन्हें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में नौकरियां भी प्रदान करता है। तो ये सब विनिर्माण के कारण ही संभव हो पाता है। आगे देखें तो यह हमारे देश में से जो है बेरोजगारी और गरीबी को निपटाने में भी मदद कर सकता है। विनिर्माण उद्योग जो होती है, जनरल सी बात देखा जाए तो देश से जो है बेरोजगारी, गरीबी को हटाने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, और इसीलिए इसे जो है भारत के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है। देखा जाए तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो लगाई जाती है, इसके कारण आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके उन लोगों को भी साथ में लेकर चला जा सकता है जो आज भी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, और इससे असमानताओं को भी कम करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी बखूबी देखने को मिलता है। इवन देखिए तो यह विदेशी मुद्रा लाने में मदद करता है। देखिए कोई भी देश के लिए विदेशी मुद्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो है वैल्यू अधिक होती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था में मदद मिलता है। और विदेशी मुद्रा जो है भी निर्माण के कारण ही आ सकता है। यानी अगर हम मैन्युफैक्चर के सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है विदेशों में अपने सामानों को भेजेगी तो विदेशों से जो है विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, और भारत में जब विदेशी मुद्रा आएगी तो भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यह विदेशी मुद्रा लाने में जो है भारत को मदद भी करती है। जो देश अपने कच्चे माल को विभिन्न प्रकार के उच्च मूल्य से सुसज्जित के सामने में परिवर्तन करते हुए समृद्ध होते हैं। ये बात तो सत्य है कि जो भी देश अपने कच्चे माल को जो है उसको समृद्ध और दूसरे चीज़ों में परिवर्तित करते हैं, वो समृद्ध हो जाते हैं। तो भारत भी अगर कच्चा माल उत्पादन करता है और उसको जो है फैक्ट्रियों में जो है मैन्युफैक्चर करवाता है और उसको विदेशों में भेजता है, तो जनरल सी बात है भारत भी समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि कच्चे माल का मांग हर एक देश में रहता है, क्योंकि कच्चे माल से ही हम जो है दूसरे सामानों को बना सकते हैं। इसलिए भारत में ही कृषि की प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है और कृषि भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात देखें तो हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। यानी देखा जाए तो हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी
उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त के रूप में देखा जा सकता है और यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी करता है और बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा भी लाता है। तो देखा जाए तो हमारे लिए मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाला समय में इसका महत्व और बढ़ेगा क्योंकि ये बेरोजगारी पर भी प्रहार करती है, तो विदेशी मुद्रा भारत में लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान ही माना जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट इज इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन हियर, एग्जामिन द मल्टी prolonged aspect of information technology and electronic industry. You know that is an important question for the exam view here. Examine the multi-pronged aspect of information technology and electronic industry. The electronic industry cover a wide range of products from a transistor set to television, telephone, cellular telecom, pagers, telephone exchange, radar, computers, and many other equipment required by the telecommunication industry. Thus, in the electronic industry, Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. You know that is an important question for the MCQ here. There is a electronic capital of India. There is a Bangalore has emerged electronic capital of India. Another important center of electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. That's important here. A state there is electronic goods are here an important center. The 18 software technology park provide to single window service. 18 software technology park provide a single window service and high data communication facility to the software export. You know that's important. 18 software technology park provide a single window service and high data communication facility to software export. A major impact of the industry has been to employment generation. That's important. A major impact of this industry has been employment generation. It is encouraging to be now that 30% of the people employed in this sector are women. 30% here. The 30% here of people employed in the sector of women. This industry has been a major foreign exchange arena in the last 2 or 3 years because it is a fast growing business process outsourcing here, means BPO sector. That's important here. This industry has been a major foreign exchange arena in the last 2 or 3 because of fast growing business process outsourcing here. The counting growth in the hardware and software is their key to be success of IT industry in India. The continually growth in the hardware and software is their key to be success of IT industry in India. That's important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का, और ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम व्यू से यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व रखेगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बातों पर जो एनालाइज किया जा रहा है। सोशल साइंस का जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। हमारा जो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बताता है कि सूचना औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलुओं का परीक्षण करें। यानी देखा जाए तो सूचना औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बहुआयामी पहलुओं को परीक्षण करना है कि इसका हमारे देश के लिए, हमारे जो है समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण आज योगदान है, किसका, सूचना प्रौद्योगिकी का और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर,
दूरसंचार उद्योग के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरणों तक जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यानी जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हो, उपयोग करते हो, सारे के सारे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से ही हमें प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो इसका जो है आज क्षेत्र बहुत काफ़ी विस्तार हो चुका है। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। देखा जाए तो ये MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि कौन सा जो है राज्य भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो बेंगलोर जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। और कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो केंद्र है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कैंटरबरी। ये सारे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के एक महत्वपूर्ण केंद्र बने हैं और इस केंद्र का जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन केंद्रों पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो है काफ़ी सुविधापूर्वक बनाए जाते हैं और पूरे देश में जो है दिए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ बनते हैं। देखा जाए तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को जो है सिंगल विंडो सेवा और उच्च डाटा संचार सुविधा प्रदान करता है। कितने? 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पर देखा जाए भारत में कम से कम 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो लोगों को जो है सिंगल वीडियो सेवा और उच्च डाटा संचार सुविधा प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस उद्योग का बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा है। देखा जाए तो इस उद्योग के कारण जो है बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया है और ये उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है। यह जानना उत्साहवर्धक है कि इस क्षेत्र में कार्यरत 30% लोग महिलाएं हैं। यानी देखा जाए तो 70% पुरुष इसमें काम कर रहे हैं और 30% महिलाएं काम कर रही। चलिए, न कम से कम आधा से कहीं 30% ही महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये उत्साहवर्धक है। यह उद्योग अपने तेज़ी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेस आउट प्रोसेसिंग यानी BPO क्षेत्र के कारण पिछले 2 या 3 वर्षों में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। यानी देखा जाए तो इस उद्योग के कारण जो है भारत में कई मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा भारत में आए हैं और इसके कारण भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुआ है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया है भारतीय मुद्राओं के अंतर्गत। कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निरंतर वृद्धि भारत में IT उद्योग की सफलता की कुंजी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने निरंतर जो है वृद्धि भारत में IT उद्योग के लिए सफलता की कुंजी यहाँ पर रखी है। तो ये IT सेक्टर जो है आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर दैट्स इम्पोर्टेंट। एलिवेट द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन बिटवीन टू द national and regional party and assess the requirement for a regional party to become a national party. You know that the question is the most important here. Evaluate the significant distinction between the national and regional parties and assess the requirement for the regional party to become a national party. The difference between the national party and the regional parties are flowing here. First of all here, national party are powerful in the nation and deal with the national issue. That's important. National party here. National parties are powerful in the nation and deal with the national issues. And second point here, regional party power is limited to a specific region state. Regional parties power is limited to be a specific region state. Only the issues and demand of the specific regions are discussed by the regional parties. And national parties action offer a performance to be national issue and over regional problem. That's important. And regional parties operation are confined to be the state. That's important here. And then here, a regional party must attain their following requirement become a national party. A party must gain at least 6% of the total vote in the Lok Sabha or Assembly election in the 4th state to be national party and win at least 4 seats in the Lok Sabha. That's important here. And a party has to be revised at least 6% of total vote in the legislative election to become a regional party and win at least 2 seats.
That's important here to sit here. Example of national party are the BJP, Congress and BSP. That's important here. National party are the BJP, Congress and BSP. The example of regional parties are DMK, Telugu, Demson. That's the most important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो क्वेश्चन है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का मूल्यांकन करें और एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की आवश्यकताओं के आकलन करें। देखिए क्वेश्चन साफ है। क्वेश्चन यहाँ दो पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बीच महत्वपूर्ण अंतर का बताना है आपको, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझते हो आंसर समझना मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में बीच क्या अंतर होता है। अब यहाँ अंतर को हम एनालाइज करते हैं। सर्वप्रथम देखिए तो राष्ट्रीय पार्टी देश में शक्तिशाली होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दे से निपटता है। राष्ट्रीय पार्टी जो होती है देश में शक्तिशाली होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दे से निपटती है। क्षेत्रीय दलों की शक्ति एक विशिष्ट क्षेत्र तक या राज्य तक ही सीमित होता है, यानी क्षेत्रीय दल जो होते हैं एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं और क्षेत्रीय दलों द्वारा केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दे और मांगों पर ही चर्चा की जा सकती है। लेकिन नेशनल पार्टी जो है पूरे देश के जो है मुद्दों पर अपना विचार रख सकती है। राष्ट्रीय दलों की कार्रवाई क्षेत्रीय समस्या पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है, यानी राष्ट्रीय दलों की कार्रवाई जो होती है क्षेत्रीय समस्याओं पर जो है राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इवन देखिए तो क्षेत्रीय दलों का संचालन राज्य तक ही सीमित होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जो है देश में शक्तिशाली होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे से निपटते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी जो होती है दलों की कार्रवाई और क्षेत्रीय समस्याओं पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो होती है एक क्षेत्र के लिए होता है, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिनकी समस्याओं और मांगों को जो है इस पर चर्चा करती है, और क्षेत्रीय दलों का संचालन राज्य तक ही सीमित रहती है। तो ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में कुछ अंतर है जो आपके समक्ष था। अब चलिए देखते हैं कि कौन पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। अब देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्षेत्रीय पार्टी को निम्नलिखित आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, यानी कुछ शर्त है जो क्षेत्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। पहली बात तो यहाँ यही आता है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करना होगा, यानी 4 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, यानी लोकसभा में कम से कम 4 सीटों का जीतना से जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने और कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायी चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होता है। तो समझ गए होंगे कि एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायक चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होगा। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी के उदाहरण भाजपा, कांग्रेस और बसपा है। ये 3 जो है राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो DMK है, तेलुगु देशम है। तो ये काफ़ी क्षेत्रीय पार्टी का एग्जाम्पल है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आप यहाँ पर जो है पार्टियों के बारे में समझ गए होंगे कि किन पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी क्या हो और क्षेत्रीय पार्टी क्या है, और क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती, कौन सा शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए केयर का काम करता है। क्योंकि दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी त्रिपाण सेंटर बहुत से क्वेश्चन लाएंगे जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है,
अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।